Dear friends, I welcome you to the Pathfinders by an Academy. Geopolitics is very much volatile, it is very much uncertain. In international relations, anything can happen at any time, at any place. Who would have thought that after pandemic, when the world was recovering, a war will start in Europe between Russia and Ukraine? Who would have ever thought when that world was recovering from Russia-Ukraine war, another war will start this time in Middle East between Israel and Hamas? So this geopolitical volatility, turbulence, and uncertainty is one of the very core feature in international geopolitics. One thing today has come as a shocker that Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, he has said that we are ready to negotiate with US. Now, this is something which is a kind of a complete flip-flop because this same supreme leader have many times said America as the great Satan, America is the biggest enemy, America is the biggest devil, America is the biggest culprit, America does the genocide, especially of the Muslim people. And the same Ayatollah has now said that, boss, I am ready to engage with my enemy. Now, who could have ever imagined again this thing? But this is, yes, this is how the international geopolitics work. So what in this session I'm trying to say is that इस सेशन में हम लोग तीन सवाल को आंसर करने जा रहे हैं. पहला कि अमेरिका और ईरान का रिलेशन कैसा है, कैसा था, कैसा है. So little bit of history about the relation between the Iran and US. First question. सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ये बात करेंगे कि क्यों आज ईरान वापस से अमेरिका से बात करने के लिए रेडी हो गया है. ऐसा क्या हो गया ईरान के पास कि नाउ इट थिंक्स दैट द टाइम हैज कम टू टॉक टू यूएस. सो व्हाट आर द रीजंस? सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड, दैट इफ सपोज कुछ ऐसा हो जाता है एंड देयर इज अ काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू बिटवीन द रिलेशंस, कुछ मिडिल ग्राउंड पे ईरान और यूएस आ जाते हैं और रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाती है, तो इस पे इंडिया का इंपैक्ट क्या होगा? So third, we will talk India specific. What could be the probable impact of this normalization of relation between two arch rivals on India? So dear friends, I hope that you will get the answer for three questions. आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपके लिए, अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस इंग्लिश मीडियम में वो हमारे करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं. इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे बैचेस मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं. आप इन डेट्स को मार्क कर सकते हो. इसके अलावा प्रयागराज में हमारे पास हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम्स में ऑफलाइन बैचेस इन डेट्स के ऊपर स्टार्ट हो रहे हैं. आप ये सारे डेट्स को मार्क कर सकते हो अपने कैलेंडर में. इसके अलावा not only Unacademy IAS provides comprehensive GS courses, but also Unacademy IAS provides all the optionals like PSIR, sociology, anthropology, essay writing courses, CSAT courses, ये सारे चीज प्रोवाइड किए जाते हैं. इसके अलावा you can also have one-to-one interaction with the educators, doubt solving session, current affair classes, and mentorship. So all these informations, if you need, what you need to do, you have to visit our branch. Which branch? Any of the three branch, Karol Bagh, Mukherjee Nagar और प्रयागराज. आप उस तीनों सेंटर्स में विजिट करें. हमारा फुल फ्लेजेड टीम है जो आपको इन सारे इंफॉर्मेशन से अवेयरनेस देगा, बताएगा आपको. अगर आप इस समय नहीं आ सकते हैं फॉर एनी रीजन, देन यू शुड इमीडिएटली डाउनलोड आवर अनअकैडमी आईएएस ऐप, और उस ऐप पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन क्लियर, सिंपल और प्रिसाइज वे में दिए जाएंगे. सो फ्रेंड्स, डोंट डिले. इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, जॉइन एन अकेडमी टीम. द लेटर यू डिले, द मोर यू आर डीलिंग योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर. सो प्लीज विजिट आवर ब्रांचेस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ ईरान एंड यूएस. अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो विल नॉट गो वेरी मच इन द पास्ट, बट विल स्टार्ट फ्रॉम 1950. 1953 अगर बात करें तो 1953 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. 1953 के समय ईरान में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, मोहम्मद मोसद्देक. ही वॉज द लीडर हु वॉज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. ईरान में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ. उस इलेक्शन में ही वॉज सेलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान. बट दिस पर्सन, मोहम्मद मोसद्देक, he does not wanted to have relations with the West.
इनका ये कहना था कि ईरान को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हमें आइसोलेट करना होगा, बिकॉज वेस्ट जो है वो ईरान को केवल तेल ऑयल के लिए यूज करता है। इसलिए जब ये पावर में आए तो ये सारे ऑयल इंडस्ट्री जो ईरान का था उन सबको नेशनलाइज कर दिए, सबको स्टेट कंट्रोल में ले आए। और यही बात ब्रिटेन और अमेरिका को पसंद नहीं आया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन अमेरिका ये दोनों आ गए, एक मिलिट्री कू हुआ अगेंस्ट मोहम्मद मोसद्देक, और उसकी वजह से इनको पावर से हटना पड़ा। एंड हु केम टू पावर? अ वेस्टर्न बैक मोनार्क हुज नेम वाज शाह मोहम्मद रजा पहलवी। सो ये पावर में आते हैं जिनको पूरा वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सपोर्ट था। एंड व्हेन शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी केम टू पावर, ही नॉर्मलाइज्ड ऑल द रिलेशंस विद द ब्रिटेन। ऑयल फील्ड पे कंट्रोल ब्रिटेन का आ गया ईरान में। यूएस ने एज अ गिफ्ट ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम दिया। आज वही यूएस को प्रॉब्लम है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कहां से बना रहा है। सो बॉस, यू वर द फर्स्ट कंट्री टू गिव ईरान सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके रिटर्न में ईरान जो है वो बगदाद पैक्ट को ज्वाइन किया। सो बगदाद पैक्ट वाज अ काइंड ऑफ अलायंस, अ ग्रुपिंग बिटवीन 4 कंट्रीज, ब्रिटेन, ईरान, इराक, पाकिस्तान, और इनका काम था सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोकना, सोवियत एक्सपेंशनिज्म को कंटेन करना इन मिडिल ईस्ट वाले एरिया में। और साथ ही साथ पहलवी जो थे वो बहुत ही डिक्टेटर टाइप ऑफ लीडर थे। उन्होंने एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाया था, सावक, और इनका काम था कि जो भी लोग मेरे अगेंस्ट ईरान में प्रोटेस्ट करते हैं या मेरे अगेंस्ट डिसेंट करते हैं, उन सबको पकड़ के उन सभी को ब्रूटली टॉर्चर करना, मारना, सो दैट ईरान में मेरे अगेंस्ट कोई भी डिसेंट ना हो। सो इस तरीके से लोग जो थे ईरान के, उनको 1953 कू जो हुआ था, जिस तरीके से अंग्रेजों ने उन्हीं के घर में आके उन्हीं का एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पावर से हटाया था, सो दैट लेड टू अ डाउनफॉल ऑफ द रिलेशन ऑफ द पीपल इन ईरान विद द वेस्टर्न कंट्रीज। वहां से ये दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था। और जिस तरीके से पहलवी जो हैं वो ईरान में सेक्युलरिज्म, लिबर्टी के वैल्यू, ये सब चीजों को प्रमोट कर रहे थे, डिसेंट को खत्म कर रहे थे, वेस्ट के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, ईरान के ऑयल में वेस्ट का कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर रहे थे। सो दीज थिंग्स वर नॉट लाइक्ड बाय द ईरानियन पीपल। ये ईरानियन को पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली फिर ईरान के लोग बैकलैश करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट द पहलवी। उनके सेक्युलरिज्म और प्रोग्रेसिव वैल्यू से वेस्ट के साथ रिलेशन, ब्रूटल टॉर्चर ऑफ द पीपल हु क्रिटिसाइज्ड पहलवी, इसके अगेंस्ट 1979 में फिर फाइनली ईरान में एक ईरानियन रिवॉल्यूशन आता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर आयतुल्ला रुहोल्लाह खमीनी, हु इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। सो 1979, जिस तरीके से 1953 को एक इंपॉर्टेंट चीज था, 1979 में आपको ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है। And this Iran में Islamic revolution, this led to Ayatollah Ruhollah Khomeini coming to power. And when he came to power, पहलवी को भागना पड़ा, वो यूएस जाके रेफ्यूज ले लिया वहां पे। और आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी जो आए, जो इसके पहले सेक्युलर ईरान था, नाउ ही कन्वर्टेड दैट सेक्युलर ईरान इनटू अ शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। आपको पता है ईरान में शिया पॉपुलेशन रहते हैं। सो व्हेन आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी केम टू पावर, उसने ईरान को शिया थियोक्रेटिक मींस अ कंट्री एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन, अनलाइक इंडिया। सो शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को बनाया। और इन्होंने खुलेआम कहा था कि यूएस इज द ग्रेट सेटन। सो सेटन कोई अच्छी वर्ड नहीं है, काफी डेरोगेटरी वर्ड है। तो उन्होंने इस तरीके से अमेरिका को ग्रेट सेटन कहा और इजराइल को लिटिल सेटन कहा। इसके बाद से जब 1979 ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट। यहां से सारे इक्वेशंस चेंज हो गए। यहां से ईरान और अमेरिका की जो एक समय दोस्ती थी पहलवी के अंदर, अब वो डाउनफॉल पे गई। और दूसरे तरफ यहां से किसका रिलेशन इंप्रूव हुआ? सऊदी अरेबिया और अमेरिका की। बिकॉज ईरान का पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, ईरान एक शिया कंट्री है। तो जब ईरान में इस तरीके से इतने स्ट्रांग लीडर आ गए और वो चाहते थे कि पूरे इस्लामिक कम्युनिटी में शिया का वर्चस्व हो, शिया का हेजमनी हो, तो सुन्नी पीपल जो सऊदी अरेबिया के थे वो घबरा गए। तो इसलिए ये दोनों के बीच में यहीं से प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो गया था, सऊदी और ईरान के बीच में, शिया सुन्नी का ये जो बैटल। तो जब ईरान, क्योंकि उस समय याद रखिएगा सऊदी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट था,
लेकिन जब ईरान इस तरीके से रिवॉल्यूशन आया और इतने स्ट्रांग लीडर आए, तो सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ दोस्ती को यहां से बढ़ाया। सो 1979 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट। यहां से आप देख सकते हैं 1979 टू 81 में यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस, 1979 में पहली बार अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया ईरान में, अमेरिका ने इराक को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द 1980 टू 1988 ईरान इराक वॉर। 2002 वाज अ वेरी बिग मोमेंट बिकॉज जब 9/11 हुआ था, 9/11 के बाद अमेरिका ने कहा था 3 कंट्रीज जिनको वो एक्सिस ऑफ इविल कहते थे, ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया। बहुत सरप्राइजिंगली आप देख सकते हो पाकिस्तान को अमेरिका ने बाहर रखा था। जो पाकिस्तान जहां पे टेररिस्ट पाए गए थे, जो पाकिस्तान जहां पे ओसामा बिन लादेन था, उस अमेरिका ने पाकिस्तान को हटा के ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया रखा था। बिकॉज ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान अमेरिका को चाहिए था अफगानिस्तान के लिए और इंडिया के लिए। तो ये बताता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है ये भी बहुत बड़ी अच्छी कुछ नहीं रही है। सो 2002 में एक्सिस ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट दिया गया था, यहां से रिलेशंस और सफर किया गया और इसी के रिटालिएशन में धीरे धीरे ईरान जो है वो अमेरिका के इस प्रेशर को, और अमेरिका जिस तरीके से ईरान को सैंक्शंस और ये सब चीज कर रहा था, तो उससे रिटालिएट करने के लिए ईरान ने एक और गलती स्टार्ट कर दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के रास्ते पे चला गया। So this was a very start of a problematic relation between the US and Iran after 1979 Iran Islamic Revolution. फिर रीसेंट टाइम्स में अगर बात करें, खासकर जब ओबामा पावर में थे, तो रिलेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। और वो इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या है कि 2015 में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, इसमें जितने भी परमानेंट मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, यूरोप यूनियन जैसे हो गया ब्लॉक और फ्रांस, ये सब लोग कंट्री मिलके ईरान के साथ एक समझौता किए। उस समझौता में कहा गया कि ईरान जो है वो सारे न्यूक्लियर रिलेटेड काम को बंद करेगा, जो वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए वो बंद करेगा, और ये सारे चीज को, जितने भी उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ये सारे चीजें उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इनको रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्ट करेगी कि क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर ईरान ऐसे करता है तो ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस हैं उन सबको खत्म कर दिए जाएंगे। So this was a kind of a very, very important agreement because अब देखो, since 2000 Iran was put under a lot of sanctions by the West. So 2015 was a breakthrough year. यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन इंप्रूव होने लगा। देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ट्वीट आया था। He said that this agreement represented the triumph of diplomacy and sagacity. So that was a good thing to happen. लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए तो रिलेशंस वापस से सफर हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया, 2018 में उन्होंने JCPOA को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो JCPOA के नाम पे सैंक्शंस तो हटवा लिया, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट अभी भी कर रहा है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बढ़ा रहा है। क्योंकि ट्रंप का रिलेशन जनरली इजराइल के साथ ज्यादा अच्छा है, तो जब ये चीजें हुई तो वापस से ईरान और अमेरिका का रिलेशन सफर हुआ। उसके बाद से देख रहे हो कॉन्स्टेंटली दोनों एक दूसरे के साथ एक तरीके से शैडो वॉर में इन्वॉल्व हैं। अमेरिका ने वापस से सैंक्शन लगाया ईरान के ऊपर, और इसी सैंक्शन की वजह से इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना मना कर दिया। 2020 में यूएस के IRGC के, जो IRGC एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ईरान के लिए, उसके जो जनरल थे कसीम सोलेमानी, उनको भी यूएस ने मार दिया। फिर सिमिलरली जो न्यूक्लियर साइंसिस्ट थे उनको इजराइल ने मार दिया। सो जब इतना ये सब चीजें हो रही थी तो ईरान ने इसके रिटेलिएशन में अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट वापस से बढ़ा दिया। सो ये हिस्ट्री हो गया 1953 को 1979 तक, 1979 के बाद और 2015 के बाद। अभी क्या है आप देख सकते हैं कि 27 अगस्त को ईरानियन सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्ला अली खमीनी, जो रूहुल्लाह खमीनी के सक्सेसर है, इन्होंने कहा है कि ही कमेंटेड ऑन अ पॉसिबल रीनेगोशिएशन with the US on nuclear cooperation, saying that there was no harm in the engaging with the enemy. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं कोई हार्म नहीं है अपने एनिमी से बातचीत करने में। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? व्हाई देयर इज अ फ्लिप फ्लॉप फॉर आयतुल्ला से क्यों फ्लिप फ्लॉप कर गया? ईरान में ऐसा चेंज क्यों आया है? तो इसके प्रमुख 5 कारण है। पहला कारण है कि 2024 में जो ईरान में इलेक्शन हुआ है, वहां पे एक रिफॉर्मिस्ट लीडर, ईरान में 2 फैक्शन है, एक तो रिफॉर्मिस्ट है, एक कंजर्वेशनिस्ट है। कंजर्वेशनिस्ट जो है वो कहता है वेस्ट के साथ कोई रिलेशन मत रखो। एक है रिफॉर्मिस्ट जो कहता है कि नहीं, थोड़ा सा लिबरल रहो, थोड़ा सा वेस्ट के साथ रिलेशन रहो। सो जो रिफॉर्मिस्ट फैक्शन थे उसके लीडर मसूद पेजेश्कियान ये पावर में आ जाते हैं ईरान के प्रेसिडेंट में।
which means that people wanted that kind of a change because इसके पहले जो लीडर थे इब्राहिम रईसी जो थे वो एक तरीके से कंजर्वेशनिस्ट है। तो ईरान में एक चेंज आया। ईरान के पास अब एक बार्गेनिंग पावर है। क्यों बार्गेनिंग पावर है? बिकॉज देखो किस तरीके से मिडिल ईस्ट में वोलेटिलिटी है। इजराइल हमास का लड़ाई चल रहा है और ईरान जो है वो कभी भी अटैक कर सकता है, जैसा वो कहता है कि हम अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स और मैं डायरेक्टली अटैक करूंगा इजराइल में। और बहुत लोग का कहना है कि अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहता है बिकॉज अमेरिका का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना की तरफ से, वो इंडो पैसिफिक में फोकस करना चाहता है। और अब तो अमेरिका को यूरोप में फोकस करना जहां वो रशिया से प्रॉब्लम झेल रहा है। सो अमेरिका डज नॉट वांट टू ओपन अगेन, जहां से वो भाग के निकला है अफगानिस्तान से, वापस से वो इस पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है। तो इसीलिए हो सकता है कि ईरान कहे कि भाई मैं आपको अटैक नहीं करूंगा इसराइल को, और लेकिन आप मेरा ये एग्रीमेंट करो। और साथ ही साथ ईरान को इस समय जो सपोर्ट है रशिया और चाइना का, दैट इज ह्यूज। ईरान, रशिया, चाइना एक तरीके से तीनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, आप न्यूज में पढ़े होंगे। सो दैट शोज कि ईरान हैज अ गुड सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। डीमोरलाइज इजराइल, अगर ईरान की डिप्लोमेसी ये कुछ हद तक सक्सेसफुल होती है तो जो इजराइल जो हमेशा से चाहता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं खत्म होना चाहिए, जिस तरीके से 2015 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो इजराइल वाज नॉट हैप्पी अबाउट जेसीपीओए, तो वापस से इजराइल के डीमोरलाइज कर सकता है ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ईरान की जो इकोनॉमी है वो बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है और सोसाइटी में भी अनस्टेबिलिटी देखने को मिला है। आपको पता होगा ये हिजाब मूवमेंट चल रहा था तालिबान ईरान में। सो ईरान कैन कोलैप्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हु नोज। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज वेल एज पीपल आर नॉट गुड हैप्पी इन द सोसाइटी। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फियर ऑफ ट्रम्प, क्योंकि यही ट्रम्प थे जब ये पावर में आए थे तो इन्होंने जेसीपीओए को रद्द किया था। वापस से प्रोबेबल है कि ट्रम्प वापस से पावर में आ सकते हैं, इसलिए ईरान जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट नोट ले रहा है कि कल को अगर ट्रम्प पावर में आते हैं तो हमारा रिलेशन इट डज नॉट सफर मोर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रम्प जो है वो यूएस इज टारगेटिंग 52 ईरानियन साइट्स। तो जब ट्रम्प थे तो रिलेशंस काफी ज्यादा खराब था ईरान के साथ, तो इसलिए ईरान ने तो हाथ बढ़ाया है। क्या अमेरिका इसको एक्सेप्ट करेगा? बहुत ही रेयर है, बिकॉज अभी तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे नहीं। अगर मान लो ट्रम्प पावर में आते हैं तब तो चांसेस बहुत ही कम है, बट यू नेवर नो। अगेन ट्रम्प इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। जब वो नॉर्थ कोरिया जाके किम जोंग यून से बातचीत कर सकते हैं, वो किम जोंग यून को हक कर सकते हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प कम्स टू पावर। व्हाई इट मैटर्स फॉर इंडिया? इंडिया के लिए तो इनफैक्ट अगर ईरान और यूएस के बीच में दोस्ती बढ़ता है तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? बिकॉज एक तो हमारा एनर्जी, आपको पता है ईरान से हम पहले बहुत तेल खरीदते थे, अब हमने तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो एनर्जी फ्रॉम ईरान जो कि चीप है वो हमारे पास आ सकता है। इंडिया बहुत ज्यादा एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ, आप देख सकते हैं चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किए, वो सैंक्शंस झेल रहा है। सिमिलरली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम रशिया के साथ मिलकर बना रहे हैं, तो ये सारे काम रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका सैंक्शंस ऑन ईरान। तो ये वापस से हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैनेज पाकिस्तान, आपको पता है कि ईरान पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। आप देखोगे बलूचिस्तान में किस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया था, तो ईरान के थ्रू हम पाकिस्तान को बैलेंस कर सकते हैं। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस, ईरान और इंडिया का बहुत अच्छा कल्चर एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस रहा है। इसके अलावा चाइना का इन्फ्लुएंस हम कम कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो एक तरीके से चाइना जो है वो ईरान, रशिया, ये लोग एक साथ आ रहे हैं और ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि चाइना जो है कुछ साल पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस एग्रीमेंट भी करवाया था। सो चाइना का मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस बढ़ रहा है, primarily because America is an enemy of Iran. If America-Iran relations normalizes, then Iran does not need China at that extent. That will be good for India. Because India का दुश्मनी ईरान से कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया चाहता है कि चाइना ईरान के साथ दोस्ती ज्यादा ना करे। वो तभी निर्भर है अगर ईरान अमेरिका का दोस्ती ठीक होता है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन ऑन यू, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। शुड इंडिया ईरान रिलेशन बी स्ट्रेंथन और इंडिया शुड फोकस ऑन इजराइल? बिकॉज यू नो दैट इजराइल एंड ईरान आर आर्क राइवल्स, उनके बीच में कभी भी कोई समझौता रेयर है कि ऐसा होगा। तो इसलिए इंडिया का जो मिडिल ईस्ट है उसमें एक बहुत बड़ा जो हर्डल है, ऑब्स्टिकल है, वो बैलेंस करना। एक तरफ अगर हम इजराइल के साथ दोस्ती करते हैं तो ईरान के साथ प्रॉब्लम होता है, अगर ईरान के साथ करते हैं तो इजराइल के साथ प्रॉब्लम होता है। इंडिया अभी तक बैलेंस करके चला है। सो व्हाट डू यू थिंक, वेदर इंडिया शुड कंटिन्यू विद बैलेंसिंग और वेदर इंडिया शुड strongly stood with Israel or whether India should start a new beginning with Iran? Because आपको पता है कि ईरान के ऊपर जब सैंक्शन लगा वेस्ट ने
तो इंडिया तेल खरीदना बंद कर दिया, बट चाइना नहीं बंद किया। चाइना अभी भी ईरान से तेल खरीदता है। सो क्या इंडिया वापस से ईरान के साथ इस तरीके कुछ चीजें स्टार्ट करेगा? So I leave that question to you. You can answer that in comment box. So I hope you like the video. See you soon in another video. Thanks for watching it.